Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Fujiyama Power Systems Limited Q2 FY26 earnings conference call hosted by Investec Capital Services India Private Limited. As a reminder, all participant lines will remain in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal the operator by pressing star, then zero on your touchtone telephone. Please note that this conference is being recorded. I will now hand the conference over to Mr. Anuj Upadhyay from Investec Capital Services India Private Limited for opening remarks. Thank you, and over to you, Anuj. Yeah, thank you, Ryan. So, good evening, everyone. On behalf of Investec Capital, I welcome you all to the Q2 and first half FY26 earnings conference call of Fujiyama Power Systems Limited. Representing the company, we have Mr. Pawan Kumar Garg. He's Chairman and Joint MD, along with Mr. Yogesh Dua, the CEO and Joint MD. Mr. Sunil Kumar, who is a non-executive director, and Prashant Gupta, who is the CFO. So without any further delay, I will now hand over the call to Mr. Pawan Garg for his opening remarks, which will be followed by the operational and financial highlight, post which we can open the door for Q&A. Over to you, sir. Good evening, everyone, and thank you for joining first earnings call post-listing. It is a privilege to address all of you today and to share overview of our operating and financial performance for quarter and half year ended with 30th September 2025. Let me begin by expressing gratitude to all stakeholders who supported our IPO journey. The successful listing has strengthened our balance sheet and positioned us to execute our expansion plan with great confidence. The quarter marked an important milestone for us as we shared our first quarterly results after listing. Before we get into financial performance for this quarter, I want to address an important aspect of our business that sometimes gets overlooked. Unlike pure play solar panel manufacturers or energy developers, Fujiyama is fundamentally a power electronics and energy solutions company. We don't just sell panels, we provide complete systems or solutions. What differentiates us is that our rooftop solar sales have historically been in off-grid and hybrid solutions. These are backup-driven installations, not primarily subsidy-driven. Our customers invest in solar because it solves their real problem they face, which is unreliable grid, while government initiatives like Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana are encouraging. Our growth had never been dependent only on subsidy. Our second quarter performance reflects the strength of our integrated business model. Our revenue from operations is 5,679 million, reflecting a 72.6 year-on-year increase. PAT margins improved from 9.7% to 11.1% quarter versus quarter. Quarter 2 versus quarter 2. For H1 FY26, revenue from operations is 11,653 million, up 61.5% year-on-year, while EBITDA for the period is 2,089 million with margin 17.9%. Our B2C business remained the core driver of scale, contributing over 90% of revenue in first half FY26. This reflects brand equity that we have built in market where word of mouth and local reputation drive purchase decisions. Additionally, we are also delighted to welcome Surya Kumar Yadav as our brand ambassador for Fujiyama Solar. His high energy performance, consistency, and strong connection with Indian households reflects the value we stand for. This association is expected to meaningfully enhance brand visibility,
strengthen consumer confidence combined with our extensive distribution network and wide portfolio. This collaboration highlights our commitment to make clean and dependable energy accessible to every Indian household. On the operation side, expansion of our channel network is also progressing well. We added new distributors, dealers, Sopi franchisee during the quarter, enabling deeper penetration across existing states and building presence in underserved pockets. The Sopi model continues to act as effective last mile interface for customers looking for guidance of system sizing, installation, and financing. The network is also supported by our field service engineers, whose feedback flows directly into our R&D teams, allowing quick corrective and preventive improvements. We believe this structure developed over the years remains a key differentiator that is difficult to duplicate. Furthermore, our manufacturing extension continues as per the schedule. The Ratlam facility in Madhya Pradesh being set up with IPO proceeds will add 2,000 megawatt each of solar panel, inverter and batteries by March 26. More significantly, our 1,000 megawatt solar cell line in Dadri facility is expected to be commissioned within 1 month. With India targeting 300 gigawatt of installed solar capacity by 2030, the demand environment for reliable and high-performance solar technology remains favorable. India's push towards rooftop solar adoption and rising household awareness of energy saving are expanding the addressable market. As we move into second half of the year, we remain focused on scaling our network, enhancing our product suite, and ensuring timely execution of our capacity expansion plans. Our priority continues to be improving customer experience through technology, service, and product reliability. With our ecosystem now spanning across R&D, manufacturing, distribution, and after-sales support, we are confident of sustaining our growth trajectory while building on trust that Fujiyama Solar and UTL Solar brands enjoy across India. Before I close, I want to thank entire team. This quarter performance is the result of their dedication and commitment to serve our customers with integrity. I also want to thank shareholders for placing their trust in us, and we are committed to build Fujiyama into business that creates sustained value for all stakeholders. Thank you. I will now hand over to our CFO to walk you through the detailed financial, and after which we will be happy to take your questions. Thank you very much. Thank you, Pawanji. Good afternoon, everyone. I will walk you through our financial performance for the quarter and half year ended September 30, 2025. Let me begin with the quarterly results. During Q2 FY26, our revenue from operations is rupees 5,679 million, compared to rupees 3,291 million in Q2 last year, representing a growth of 72.6%. EBITDA for the quarter is rupees 1,030 million with a margin of 18.1%, improving from 15.2% in the same period last year. Profit after tax is rupees 629 million and the PAT margin is 11.1% compared to 9.7% in Q2 FY25. A key driver for this margin improvement was a movement in material margin, which improved by 0.7% over last year. This came mainly from higher in-house manufacturing across solar panels and batteries. Over the past year, we expanded solar panel manufacturing nameplate capacities from 439 megawatt to 1039 megawatt and battery capacity from 1363 megawatt hours to 1863 megawatt hours. This backward integration has started reflecting meaningfully in our cost structure. In addition to this, the scale benefit from high volume supported better production efficiency. Employee benefit expenses and operating costs
also showed improvement when seen as a percentage of revenue. Employee costs reduced by 0.6% and other operating expenses reduced by 0.1%, driven by labor optimization and better control over operating overhead. Together, these factors contributed to the expansion in the overall profitability for the quarter. Let me now turn to the sequential comparison. On a quarter-on-quarter basis, revenue declined 4.9%. PAT reduced from rupees 676 million in Q1 to rupees 629 million in Q2, and the PAT margin moved from 11.3% to 11.1%. The decline in revenue was largely due to the impact of the GST rate cut on solar equipment from 12% to 5%. The announcement and implementation of this change created a temporary pause in the market as customers postponed purchases to benefit from the lower tax rate. This resulted in nearly a month of muted activity. Additionally, employee benefit expenses increased by rupees 25 million, reflecting a rise in hand count in preparation for the new capacities that will come on stream over the next few quarters. This increase was partly offset by savings in other expenses. Now moving to the half-year numbers, for H1 FY26, revenue from operations was rupees 11,653 million, higher by 61.5% compared to rupees 7,217 million in H1 FY25. EBITDA is rupees 2,089 million with a margin of 17.9% and PAT for the period is rupees 1,305 million, representing a margin of 11.2% compared to 10.4% in the same period last year. The improvement in profitability for the half year is consistent with the trend seen in the quarter. Material margin improved by 1% over last year, supported by the expansion in in-house panel and battery manufacturing capacities and the benefit of scale. Employee benefit expenses reduced by 0.3% as a percentage of revenue due to labor efficiencies. Let me now briefly touch upon the balance sheet. As of September 30, 2025, total assets stood at of rupees 15,900 million compared to rupees 10,140 million at the end of March 2025. Total equity increased from rupees 3,968 million in March 2025 to rupees 5,276 million in September 2025. Total debt is rupees 6,740 million compared to rupees 3,462 million in March. The rise in borrowing reflects the pre-IPO funding structure which has been since been addressed. Post-IPO, we have utilized rupees 2,750 million for debt repayment. Adjusting for this, our pro forma net debt stands at rupees 3,903 million and the pro forma net debt to equity ratio is 0.35 compared to 1.26 as of September. On working capital, net working capital days for H1 FY26 stood at 70 days, broadly stable compared to 71 days in FY25. Receivable days improved to 14 days, while inventory days moved to 108 days and payable days is 52 days. As we move into second half of year, we expect the benefits of our expanded capacity, improved structure, and stronger balance sheet to reflect in our performance. Our focus remains on operational efficiency, prudent capital deployment, and maintaining healthy margins as we scale. That concludes my remarks, and we can now open the floor for question and answers. Thank you, everyone. Thank you. Ladies and gentlemen, we will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use their handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press star and 1. We take the first question from the line of Shrishti Agarwal from StepTrade Capital. Please go ahead. Hello. Yes, sir, please. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Darshit this side from a StepTrade Capital. Yes, sir.
So, sir, my first question is on the solar cell capacity. So, we'll request you to throw some light on the status of the solar cell capacity as well as the future expansion that you mentioned at the time of the IPO. So, that is about my first question. And second question I will ask on the industry. So, we'll request you to throw some light on this expansion. ओके तो सोलर सेल का सर 1 गीगावाट का हमारा जो प्लांट है जो हम अंडर इंस्टॉलेशन है तो वो विद इन 1 मंथ वो ऑपरेशन पूरी तरह से हो जाएगा। तो सारी मशीन पावर अप होनी शुरू हो गई है और सारा जो सिस्टम है इसमें यूटिलिटीज है, मशीन्स है, वो सारा का सारा पावर अप होना शुरू हो गया है और अभी अंडर टेस्टिंग है और ट्रायल रन इसको शुरू कर दिया है सर। तो विद इन 1 मंथ भी एक्सपेक्ट के इसको हम ऑपरेशनल हो जाएगा ये सारा दादरी में जो 1 गीगावाट का प्लांट लग रहा है। Okay. Sir, can we expect cash flow and revenue from this solar cell for Q4? Q4 में डेफिनेटली ये बेनिफिट देगा, बट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि अभी उसमें एक्सपेक्ट ना करें लास्ट क्वार्टर में, बट जो भी होगा वो बोनस होगा सर, मतलब कि उस चीज को। Understood. Additional. And sir, Yes, sir. my second question is on the industry. So, sir, in last week, there was one news with regard to the oversupply with regard to the solar photovoltaic module. So, please throw some light on this. ओके सर, तो ये काफी इंडस्ट्री में मतलब कि न्यूज है कि ओवर सप्लाई मॉड्यूल्स की आ रही है, लेकिन इसमें सर मेजर देखने वाली बात यह है कि हमारा जो मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग है दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन ओनली, क्योंकि हम जो है रूफटॉप सोलर में है और रूफटॉप सोलर के हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, सोलर इन्वर्टर, सोलर बैटरीज एंड सोलर पैनल। तो मेजर स्ट्रेंथ कंपनी की है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम सोलर इन्वर्टर्स बना रहे हैं और हमारे पास मोर देन 500 SKU है ओवरऑल, मतलब अक्रॉस सोलर पैनल, सोलर बैटरी एंड सोलर इन्वर्टर। तो मेजर है कि कस्टमर को तीनों आइटम एक जगह से चाहिए। अगर हम सोलर इन्वर्टर दे रहे हैं तो कस्टमर चाहता है कि बैटरी और पैनल भी हमें उसी कंपनी का मिले जिसका हम सोलर इन्वर्टर लेते हैं। तो वहां पर अगर हम बाहर से लेते हैं तो कंसिस्टेंट सप्लाई का हमें प्रॉब्लम रहता है, तो जिसकी वजह से हमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इसमें जाना पड़ा। तो जो भी पैनल का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग जो हमारी कैपेसिटीज है वो टोटली हमारी इन हाउस कंजप्शन के लिए है, कैप्टिव यूज के लिए है और हमारे चैनल नेटवर्क के लिए है। तो इसलिए जो ओवर सप्लाई का इश्यू है उसमें हमें कहीं बेचने के लिए B2B के पास नहीं जाना। हमारा मोस्टली मोर देन 90% बिजनेस जो है वो B2C के लिए है और जितनी भी हमारी जो कैपेसिटीज आ रही है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए ही है। ओके। और सर अभी जैसे अपना मॉड्यूल में भी आप 1.3 से और 2 गीगावाट एक्सपांड कर रहे हो, राइट? सो वो एलटीटीज रहेगा या फिर वो इम्पैक्ट करेगा ये? ओके सर, देखिए अगर आप इंडस्ट्री में देखें जो इंडस्ट्रियल रिपोर्ट्स जितनी भी देखेंगे रूफटॉप सोलर में ईयर ऑन ईयर 40% से 43% का CAGR जो मतलब के पूरी इंडस्ट्री रिपोर्ट्स में हर जगह पे दिखाई दे रहा है। और जो गवर्नमेंट का भी पुश है और जो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स आ रही है देखिए गवर्नमेंट की सब्सिडी जो स्कीम है जो ऑन ग्रिड के लिए आ रही है, अभी कंपनी उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे पास DCR सेल नहीं था। बावजूद उसके जो कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू ग्रोथ आई है वो आई है अवेयरनेस की वजह से। जैसे ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना जो आई उसकी अवेयरनेस से ऑफ ग्रिड का भी हमारा मार्केट शेयर काफी बढ़ा, मतलब कि मार्केट शेयर ही नहीं मार्केट बढ़ी बेसिकली। वो दैट्स बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि कस्टमर्स को अवेयरनेस हुई कि हमें रूफटॉप सोलर में जाना चाहिए और उसके बेनिफिट्स है। तो वो जब इंक्वायरीज आई तो हम बेटर उसका कन्वर्जन कर पाए और ग्रोथ ला पाए इसमें। तो अगर हम देखेंगे तो रूफटॉप सोलर में जितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है उसके हिसाब से, क्योंकि रातों रात तो सर कैपेसिटी लगती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है लगने में, तो ये एक्सपेंशन उसी में है। इंडस्ट्री का जो CAGR है अगर उसमें अपनी जो मार्केट शेयर है अगर हमें मेंटेन करना है तो वो हमें इसलिए कैपेसिटी हमें एनहेंस करनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। अंडरस्टूड। जी, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press star and 1.
We take the next question from the line of Rajesh from ET. Please go ahead. हेलो सर, क्या सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर, यस सर। सर मुझे ये समझना था, आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो टीयर 1 सिटी से भी होता है या टीयर 2 या टीयर 2 टीयर 3 सिटी का ही आपका क्राउड होता है टारगेट ऑडियंस में? अभी सर देखिए, मेजर हमारे पास जो है टीयर 2 टीयर 3 और विलेजेस है सर। रूरल जो है वो हमारा टारगेट ऑडियंस है आज में। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि टीयर 1 में भी अपना प्रेजेंस बनाए सर बेसिकली। तो कौन कौन लोग है वो आपके पास आते हैं कि आपका पैनल लगाना है, मतलब उनको क्या जरूरत पड़ती है? ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा ही ना। ओके सर, तो मैं देखिए सर, हम पहले इन्वर्टर के बिजनेस में थे और 2008 से हमने अपने सारे इन्वर्टर्स में सोलर के फीचर ऐड करने शुरू किए, सोलर चार्ज कंट्रोलर ऐड करना शुरू किया और लोगों को हमने एजुकेट करना शुरू किया कि आने वाला टाइम सोलर का है। तो वहां से क्योंकि पावर कट जहां पर गांव में या टीयर 2 टीयर 3 में जहां पर पावर कट है, अभी भी है काफी जगह पे, तो वहां पर लोगों का मेन है कि बैकअप ज्यादा चाहिए और बैटरी कॉस्टली होती है और रिपीटेड उसको रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमने एक 50-50 का कॉन्सेप्ट चलाया कि 50% बैटरी ले और 50% सोलर पैनल ले। तो उससे क्या है कि जो बैटरी की रिप्लेसमेंट है वो उसमें जो खर्च है वो 50% हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट उतना ही रहता है, ठीक है। आफ्टर 2-3 ईयर्स जब बैटरी रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ती है तो उसमें खर्च आधा हो जाता है और सोलर पैनल होने से बिजली का बिल भी कम हो जाता है और साथ में क्या है कि जो बैकअप है वो उतना ही रहता है कस्टमर का। तो बजट भी उतना रहा, बैकअप भी उतना रहा और जो आफ्टर मतलब बिजली का बिल भी बच गया और बाद में जो बैटरी की रिप्लेसमेंट का खर्च है वो भी बच गया। तो इस तरह से हमने लोगों को एजुकेट करके इस मार्केट में हमने पूरी मार्केट मतलब कि जीरो से स्टार्ट किया, मतलब कि पूरी डेवलप की है सर ये इस तरह से। तो वो हमारा कस्टमर बेस है और जो सालों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे काफी बड़ा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का और चैनल पार्टनर का हमारा नेटवर्क है। तो वो लोकल में हर तरह से सपोर्ट करता है कस्टमर को। तो इस तरह से हमारा नेटवर्क बना है। अच्छा, ओके। तो इसमें उनको ईयरली मेंटेनेंस भी जाता है क्या कुछ एक बार सेटअप करने के बाद? ओके सर, तो ये ईयरली मेंटेनेंस का थोड़ा सा स्कोप हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं सर। हम कहते हैं कि आप देखिए ईयरली मेंटेनेंस से आप लोग कमाए, क्योंकि देखिए जब तक वो नहीं कमाएंगे तो वो हमारे साथ जुड़े नहीं रहेंगे। तो कंपनी अपने रिवेन्यू पे इस पे ज्यादा फोकस नहीं करती कि हम ईयरली मेंटेनेंस पे कमाए। हम उनको सपोर्ट जरूर करते हैं हर तरीके से डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप अपना एएमसी ले या फिर वैसे फ्री में, बट इवन हम तो गाइड करते हैं सर उनको, आप है ना फ्री में सर्विस दीजिए और रेफरेंस से ऑर्डर लीजिए। क्योंकि देखिए सर, हमने जब शुरू से काम किया था तो हम खुद सर्विस जब देने जाते थे तो हमने ये देखा कि जब हम कस्टमर को सर्विस देते हैं तो हमें रिपीटेड ऑर्डर मिलते हैं। तो हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ये कहते हैं कि आप सर्विस पे कमाने का ध्यान कम दीजिए, रिपीटेड ऑर्डर ज्यादा लीजिए। तो वो चीज उनको मिलती है और कस्टमर भी अप्रिशिएट करते हैं सर। तो इसका जो एग्जीक्यूशन है, आप सिर्फ वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मटेरियल सप्लाई करते हो या एग्जीक्यूशन भी आप ही करते हो सेटअप करने का पूरा? सर्विस में या सर इंस्टॉलेशन में? मतलब कहीं से आपको ऑर्डर आया, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी ने बोला कि हमारे बिल्डिंग पे लगाना है, तो आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को मटेरियल सप्लाई करोगे और आगे का काम वो करेंगे इंस्टॉलेशन का, या फिर वो साथ आप ही करते हो पूरा? डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही उसमें सर इंस्टॉलेशन करते हैं और वो अपने स्टॉक में भी रखते हैं सर मटेरियल। मोस्ट ऑफ द आइटम अपने जो क्विक रनिंग आइटम्स है वो सारा अपने स्टॉक में रखते हैं और जो कम चलती है वो अगेंस्ट ऑर्डर मंगवा लेते हैं और हमारी डिलीवरी फास्ट रहती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि सारे एसक्यू हम अपने स्टॉक में रखें और जैसे ही ऑर्डर आए तो इमीडिएटली हम विद इन 24 आवर्स उसको डिस्पैच करने का पूरा टारगेट रखते हैं अपना। इसलिए अगर आप देखेंगे हमारी बुक्स में इन्वेंट्री साइकिल थोड़ा सा हमारा प्लस मिलेगा, लेकिन रिसीवेबल काफी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसमें उनको बहुत ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करने की जरूरत नहीं है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को। हाँ, कुछ करने की जरूरत है बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारी कमिटमेंट होती है कि हम फास्ट डिलीवरी देंगे आपको। तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन का काम वो डिस्ट्रीब्यूटर डीलर का ही होगा, आपका उस पर कुछ नहीं आता है? यस सर, इंस्टॉलेशन का काम सारा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। उसमें कभी हेल्प की जरूरत होती है तो हमारे सर्विस इंजीनियर है, मोर देन 600 हमारे सर्विस इंजीनियर फील्ड में,
वो उनकी हेल्प करते हैं। इनिशियली जब उनको ट्रेनिंग देनी है तो उसमें हेल्प करते हैं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें हेल्प करते हैं। बाकी वो जो इंस्टॉलेशन से जो अर्निंग है वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के स्कोप में हम रखते हैं कि आप उससे भी थोड़ा पैसा कमाएं, तो जिससे वो कंटिन्यूअस उनका ट्रस्ट हमारे पे बना रहता है। तो आपका अभी टीयर 1 में एक्सपेंशन करने का कुछ इफेक्टिव प्लान बना है या फिर जो चल रहा है टीयर 2 टीयर 3 में आप कंटिन्यू करोगे? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा प्लीज। टीयर 1 सिटी में भी आप इफेक्टिवली एक्सपेंशन का देख रहे हो या फिर आप टारगेट टीयर 2 टीयर 3 में ज्यादातर कर रहे हो? टीयर 1 में सर देखिए ऑन ग्रिड ज्यादा चलता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, रूरल में ऑफ ग्रिड ज्यादा चलता है, टाउन्स में हाइब्रिड ज्यादा चलता है। टीयर 1 में अगर हम देखेंगे ऑन ग्रिड ज्यादा चलता है। तो अभी हमारे पास डीसीआर सेल नहीं था, जिसकी वजह से हम वो मार्केट टैप नहीं कर पा रहे थे। सब्सिडी वाली जो मार्केट है, ऑन ग्रिड की मार्केट है, वो टैप नहीं कर पा रहे थे। पर अब अपना डीसीआर सेल की जब कैपेसिटी आ जाएगी तो हम वो मार्केट में भी शेयर ले पाएंगे, तो उससे हमारे को टीयर 1 में भी शेयर मिलने का उम्मीद है। अच्छा, और एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था ये कि सपोज कोई फार्मर अपने फार्म में वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है आपका पैनल, ताकि वो एनर्जी बना के उसे बेच सके, तो ऐसा होता है कि ये पॉसिबल है? ये सर कुसुम स्कीम आई हुई है गवर्नमेंट की एक, जिसमें कुसुम ए कुसुम बी, तो इसमें है। लेकिन अभी तक हमारी पैनल की कैपेसिटी ज्यादा नहीं थी, तो हमने उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाए हम, बिकॉज हमारी बहुत पैनल इन्वर्टर और बैटरी के सामने पैनल की कैपेसिटी हमारी कम पड़ रही थी। अभी हम एट पार पे आ पाए हैं, जिसमें कि पैनल की कैपेसिटी भी हमारी उतनी ही हो पाई है, लगभग 1.5 गीगावाट इन्वर्टर की और बैटरी की और पैनल की बराबर पे आए हैं। लेकिन अभी भी हमारा जितना भी पैनल हम बना पा रहे हैं सारा का सारा रूफटॉप में चला जाता है। कुसुम स्कीम के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा बचता नहीं है अभी, तो आगे जो फर्दर एक्सपेंसेस हो रहा है उसमें अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी रहेगी सोलर पैनल की, तो हम डेफिनेटली उस मार्केट में भी मतलब हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ही उसमें काम करेंगे, और हमें लगता है कि उसमें भी कुछ ना कुछ बिजनेस हमें मिलना चाहिए। तो फिलहाल अभी हम इंडिया मार्ट का कुछ डेटा स्टडी कर रहे थे, तो इसमें हमें टॉप 3 जो बिजनेसेस जो हो रहे हैं इंडिया मार्ट पे, उसमें सबसे पहले मोबाइल एक्सेसरीज दिखा, सेकेंड थिंग हमें सोलर रिलेटेड दिखा, एंड थर्ड थिंग हमें दिखा वो ई रिक्शा के स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड दिखा। तो आपका कुछ इंडिया मार्ट के रिलेटेड भी ट्रेड होता है, मतलब वहाँ से भी आप ट्रेड करते हो उस चैनल से? नहीं सर, इंडिया मार्ट पे तो मेरे ख्याल से अभी आपको एक मिनट योगेश जी बताएंगे। एडवर्टाइज ये जो इंडिया मार्ट पे सर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट शेयरिंग के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन वहाँ से कुछ स्पेशल बिजनेस होता है और ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा मेजर जो बिजनेस पेमेंट ड्रिवन है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स और शॉपिस के थ्रू हमारा सारा बिजनेस होता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होती है वो अमेजन से कुछ हो रही है, हमारी वेबसाइट से कुछ हो रही है, वो काफी कम। अच्छा, तो देखिए सर अभी इसमें तो बहुत सारे इनोवेशंस भी हो रहे हैं और कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने सुना है कि आप कैसे टैकल करोगे, मुझे समझ में आया। हमें एक समझना था आप इनोवेशन किस टाइप से कर रहे हो, ताकि कोई नए बिजनेस है उनसे भी आप 2-3 स्टेप्स अहेड रहोगे हमेशा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बिजनेस है। देखिए सर, इनोवेशन तो अगर आप मतलब देखेंगे तो सर सबसे ज्यादा एसकेयू, मतलब के हम वी बिलीव के हमारे पास सबसे ज्यादा एसकेयू है इसमें। डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन वी हैव डिफरेंट सॉल्यूशंस, मतलब के अक्रॉस द इंडस्ट्री, मतलब के बेसिकली रूफटॉप सोलर पावर कंडीशनिंग में इतने प्रोडक्ट्स है हमारे पास कि मतलब के काफी है, कहने का मतलब ये है सर। और बाकी इनोवेशन की बात यह है कि हम अपने जो हमारा सेल्स नेटवर्क है, सर्विस नेटवर्क है, उसमें हम एआई एडॉप्शन कर रहे हैं। पिछले 3 साल से हम एआई पे काम कर रहे हैं और एआई के थ्रू हम काफी अच्छा अपना एक कन्वर्जन रेशो है ना, वो काफी इम्प्रूव कर पा रहे हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ऑपरेशनल मार्जिन हमारे इम्प्रूव होंगे इसकी वजह से, एआई की वजह से, और जो अप्रोच होगी कस्टमर से वो फास्ट होगी सर, और जो फास्ट हुई भी है। तो जो जी आपके कस्टमर अभी आपके पास जो जुड़ रहे हैं नए, बहुत अच्छा नेटवर्क है आपका, तो वो एक्चुअली कॉस्ट की वजह से जुड़ रहे हैं कि क्वालिटी की वजह से जुड़ रहे हैं? उनका मेन कंसर्न क्या होता है आपसे जुड़ने का? मैं कहूँगा सर सर्विस की वजह से, अगर सही बताए तो सर्विसेज, लोग सर्विसेज से खुश है तो वो दूसरे लोगों को बताते हैं,
30 साल से हम हैं मार्केट में, काफी लोगों काफी मेरे ख्याल से कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स 1 मिलियन आ रहे थे हमारे। तो 1 मिलियन अगर हम इन्वर्टर से काउंट करते हैं सर, देखिए नंबर ऑफ इन्वर्टर्स जितने बेचे हैं, पैनल तो हो सकता है उससे भी ज्यादा चले जाए, एक इन्वर्टर के साथ 4 पैनल भी जा सकते हैं, एक इन्वर्टर के साथ 2 बैटरी भी जा सकती है। अगर नंबर ऑफ इन्वर्टर है तो उतने हमारे कस्टमर्स है एक तरह से, तो उतने कस्टमर्स है आज की डेट में, और उन लोगों को एक ट्रस्ट मिला है, सर्विस मिली है टाइम पे, वो सबसे बड़ी बात है। और प्राइस तो डेफिनेटली कम्पिटिटिव है, और प्राइस हम ऐसे नहीं देखते, हम देखते हैं वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए कस्टमर को। मतलब अगर 3 kVA का 3 kVA से कंपैरिजन करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 kVA में फीचर्स क्या मिल रहे हैं, उसके काम के कौन से फीचर्स है। गांव के कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है, टाउन की अलग रिक्वायरमेंट है, शहर की अलग रिक्वायरमेंट है, तो हम अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन वी गिव एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट सर। तो वो इम्पोर्टेंट है सर, जो जिसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपको ऐसे लगता है कि आपके कंपटीशन में टाटा पावर वगैरह बहुत इफेक्टिवली आएंगे B2C में आगे जाके? देखिए सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, जो भी आए सबका वेलकम है, बहुत बहुत अपॉर्चुनिटी है सर मार्केट में। अगर कस्टमर को सस्टेनेबल सर्विस जो भी दे पाएगा वो काम कर पाएगा सर, मेन चीज ये है। अगर सर्विसेज टाटा आए या कोई भी आए, जो भी सर्विस अच्छी देंगे, मतलब कि वो सब काम कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज बहुत है सर। चलिए थैंक यू सर, मेरी क्वेश्चंस तो हो गए, नेक्स्ट कॉल में फिर और भी कुछ पूछेंगे जो समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. We take the next question from the line of Shrishti Agarwal from Step Trade Capital. Please go ahead. Hello, sir. So actually, your CFO mentioned that your dip in revenue this quarter was due to GST cut from 12 to 5%, so the customers paused their buying. So is it just a deferral of your sale, and are you hoping to recover that sale in the month of December, or will it impact your overall financial revenue? देखिए, अगर हम देखें जो मतलब एक्चुअल में सेल्स का काम है ना, योगेश जी देखते हैं, मैं एक थोड़ा सा मतलब ये बताता हूँ। इनका ये कहना होता है कि जो भी मेरा ऑर्डर आता है विद इन 24 आवर डिस्पैच होना चाहिए, जो हमारे ऊपर प्रेशर रहता है इनका। तो इनका ये कहना है कि आज जो मेरी सेल्स छूट गई ना तो वो चली गई सर। तो मतलब इनका इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, 500 SKU है, हमें उसकी वजह से इतनी ज्यादा इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ती है। मतलब मेरा हमेशा इनसे इस बात पे झगड़ा रहता है कि मतलब मैंने कहा 1-2 SKU नहीं भी हुए तो क्या फर्क पड़ता है, पर ये कहते हैं जो सेल्स छूट गई ना वो दोबारा नहीं आएगी। तो मतलब डेफिनेटली कुछ रिकवर होगी, पर उतनी रिकवर नहीं होगी जितना लॉस हुआ है उस पीरियड में। मतलब होता ही है कि जो सेल चली गई वो चली गई। मतलब कोविड पीरियड में जितनी सेल गई वो मतलब ठीक है, रिकवरी में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मंथ ही आ जाएगी वो सेल, क्योंकि कस्टमर कुछ और भी परचेज कर लेता है उस पीरियड में। सबके अपने बजट्स होते हैं। हमारा जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो सब है बेसिकली। लेकिन कमिंग क्वार्टर Okay, and sir, you have historically grown through 45%. So आपका फ्यूचर रेवेन्यू गाइडेंस क्या है कि आप उसी रेट से ग्रो करेंगे? व्हाट इज योर फ्यूचर रेवेन्यू एंड बॉटम लाइन गाइडेंस? देखिए, अगर हिस्टोरिकली देखें तो हमेशा ईयर ऑन ईयर हमने ग्रोथ की है, और वी विल ट्राई बेटर एंड बेटर एवरी टाइम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you. We take the next question from the line of Arun Subramaniam, who is an individual investor. Please go ahead. Hello. Yes, sir. Can you hear us? Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Hi, we're calling from Ampersand Capital. Sir, 2-3 questions. One is that your ROC, return on capital employed equity, continues to be fairly healthy, 25%, but it used to be much higher at around 40% earlier. And is this entire decline because of your inventory increasing? So, sir, I believe you are asking about the ROC and ROE. Yes. Right? Okay. So, sir, the number that you are seeing in the presentation belongs to the half year per se. And the second thing, the growth that we achieved
the ROC and ROE in the past is due to the higher asset turnover. So if you see the number which you are referring is belongs to half year only. I understand that, but this decline has coincided with the fact that your inventory has gone up quite a lot. So will the inventory remain at such a high level, or it will go down in the future once you start building all these cell factory and all your backward integration gets completed? So, sir, the increase in the inventory in this quarter is due to, as Pawan sir explained about the sale deferral which was there. So we ordered few inventory in the past as we need to maintain our inventory levels. But due to this sale deferral, our inventory slightly gone up and our inventory days have gone to 108 days. But in the coming quarters, we believe that the number should, this inventory cycle number should get stabilized. Okay, stabilized at what level? At least, sir, it will be historically it was around to 90 to 98 days. So we believe it will be somewhere around there. Okay, and it will not go down even though you will have your own cell factory, unlike in the past. तो सर एक्चुअली में अगर आप देखेंगे इस क्वार्टर में तो हमें सेल के लिए भी रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, वो भी हमारा मतलब कि रॉ मटेरियल होगा और हमें साथ में सेल भी रखना होगा। तो दोनों कहीं ना कहीं अगर जब भी हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है सर, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन हमने ये देखा है एक बार थोड़ा सा इन्वेंट्री साइकिल बढ़ता है और बाद में वो थोड़ा सा कम होता है सर, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है उसको स्टेबलाइज होने में और रिड्यूस होने में। जब हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जब गए हैं एक बार को थोड़ा सा बढ़ता है क्योंकि रॉ मटेरियल भी स्टॉक रखना पड़ता है और फिनिश गुड्स का भी स्टॉक रखना पड़ता है, पर बाद में फिनिश गुड्स को कम कर देते हैं, रॉ मटेरियल ज्यादा हो जाता है तो उससे वो चीज स्टेबलाइज होती है और इवन रिड्यूस होती है सर। ये हमारा पिछला एक्सपीरियंस रहा है अब तक का। जब हमने बैटरी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया तब भी ऐसा हुआ, जब हमने सोलर पैनल का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया तब भी ऐसा हुआ। एक बार को थोड़ा सा बढ़ा था फिर बाद में कम हो गया था। ओके, और सर आपका मार्जिन कितना इम्प्रूव हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन दैट यू आर डूइंग? देखिए सर, आप लोग हमसे ज्यादा समझते हैं इसमें, मतलब कि बेसिकली में अभी तो मार्जिन अच्छे हैं, जब तक अच्छे रहेंगे तो इम्प्रूव होंगे। And sir, if you can just last question from my side, आपने ये फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा ग्रो किया है and even though there was a shortage of cell as you mentioned, so does this mean that that going forward your growth rate may in fact improve because of cell availability? एब्सोल्यूट टर्म में तो सर देखिए कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता है होगा ही, मतलब कि जो दिखाई दे रहा है अभी, लेकिन मार्केट में बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती है। वी बिलीव इट शुड इम्प्रूव, लेकिन इंडस्ट्री के साथ है, पूरी इंडस्ट्री के साथ। लेकिन हम अगर देखेंगे तो ओवरऑल हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट मिक्स है जिसमें कि अगर वेरियस फैक्टर्स अगर इफेक्ट भी करते हैं तो हम कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट रहने की पूरी उम्मीद है, मतलब कि क्योंकि अगर आप देखेंगे बैटरीज भी है, इन्वर्टर्स भी है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा जो एक स्ट्रेंथ R&D की है वो भी है। तो ऐसे अगर नई एप्लीकेशंस भी आ रही है इसमें, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, तो हमें उम्मीदें अच्छी हैं सर। कल एक बात बता दीजिए कि आपके जो सेल फैक्ट्री आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अभी स्टेबलाइज कर रहे हैं, उसमें कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं? यस सर, तो अभी सारी मशीन पावर अप होनी शुरू हो गई है, सारा यूटिलिटीज पावर अप होनी शुरू हो गई है। विद इन 1 मंथ वी एज्यूम के फुली फंक्शनल में आ जानी चाहिए सर। अभी जो थैंक यू सो मच सर। यस सर, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, if you wish to ask a question, please press star and 1. We take the next question from the line of Anuj Upadhyay from Investec Capital Services India Private Limited. Please go ahead. Yes sir. Yeah, hi sir. Sir, can you give your capex guidance for FY 26 and 27? कैपेक्स तो सर देखिए अभी तो जो हमारा आईपीओ प्रोसीड से हमने रतलाम में कैपेक्स का प्लान किया है 2 गीगावाट इन इन्वर्टर, 2 गीगावाट इन पैनल एंड 2 गीगावाट लाइक इन
पैनल, बैटरी एंड इन्वर्टर इन ऑल 3 सेगमेंट्स। तो इसको मिला के एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो टोटल हमारी कैपेसिटी वो डबल हो जाएगी सर, करीब करीब अप्रोक्सीमेट डबल हो जाएगी। तो इसमें जो IPO प्रोसीड से इसमें मेजर पैसा इसमें जा रहा है। राइट, बट एनी नंबर सर, जैसे कि FY 26 में टोटल कैपेक्स कितना होगा एंड अगर कुछ 27 में भी जा सकता है? तीनों आइटम का मिलाकर 272 करोड़ का इसमें है सर, रतलाम में जो है कैपेक्स। ओके, ये सर। एंड सेल कितना रहेगा सर? आई गेस दिस इज फॉर द 3 थिंग यू मेंशन, इन्वर्टर, बैटरी एंड पैनल। तो सेल का कैपेक्स? हाँ, तो दादरी में सर हमने वैसे बजट रखा था 400 के करीब का, 350 से 400 का रखा था। एंड वी एज्यूम वी विल लाइक इसको और बेटर हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इसको करके और बेटर नंबर के साथ इसको क्लोज हम करने की पूरी ट्राई कर रहे हैं, मतलब कि उसी के अंदर या उससे भी बेटर इसको क्लोज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब तो पूरा क्लोजिंग पे है और मतलब कि काफी विद इन 1 मंथ ये प्रोडक्शन में आ जाएगा। Okay. And this battery in Dadri, this by when ये commission हो जाएगा सर? And presentation में you have mentioned क्यों? हाँ, वो सारा हमारा टारगेट है सर, मार्च 26 तक सारा कमीशन करने का है टारगेट। Okay, तो ये कमीशन हो जाएगा सर, when can we expect full stabilization of plant and battery? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रशांत जी ने बोला कि जो हमारा ROC थोड़ा डाउन था या है बिकॉज ऑफ द कैपेक्स विच वी आर इंकरिंग नाउ। ऑल दिस कैपेसिटी जो कि इन्वर्टर, बैटरी, पैनल, इवन द सेल will take some time for stabilization. So by when can we expect normalization in ROC and ROE and to what level? तो सर जैसे सेल का अगर मैं देखूं तो हमारे जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर्स है तो उनका कॉन्फिडेंस पे ही मैं मतलब कि मेजर बात कर सकता हूँ। तो उनका कॉन्फिडेंस है कि मार्च अप्रैल तक हम इसको फुल्ली मतलब कि फुल कैपेसिटी पर लेके आ जाएंगे। तो अगर मार्च अप्रैल तक इन केस अगर 1-8 महीना और हम डिले भी पकड़ लें तो एट स्टार्टिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर हम उसको फुल कैपेसिटी पे लेके आ जाएंगे सेल फैक्ट्री को। अगर हम देखते हैं रतलाम का, तो रतलाम का हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। पहले हमने काफी शॉर्ट इंटरवल्स में अपनी लाइनें सारी कमीशन की है, इससे पहले भी सोलर पैनल और इन्वर्टर और बैटरी में हमारा काफी अच्छा स्टाफ है, हमारे पास काफी अच्छी टीम है। तो वो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता सर कंपैरेटिव, मतलब कि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहा उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन डेफिनेटली कैपेसिटी जब डबल हो रही है तो मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि रातों रात सेल भी डबल हो जाएगी। हाँ, सेल थोड़ा सा इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एंड जब हमारे पास कैपेसिटीज होगी तो धीरे धीरे सेल भी आ जाएगी सर, मतलब कि उस चीज में नेक्स्ट ईयर में भी एज्यूम के ठीक ठाक लेवल पर ले आएंगे। ओके, सो ऑल योर बैटरी भी जो है होपफुली बाय Q1 तक स्टेबलाइज हो जाना चाहिए दादरी वाला, राइट सर? यस सर। तो इसमें स्टेबलाइजेशन में बहुत ज्यादा मतलब के टाइम नहीं लगते बैटरी में, इन्वर्टर में, और जो हमारा क्योंकि 30 साल से हम काम ये सारे कर रहे हैं तो इसमें हमें कोई चैलेंज किसी तरह का नहीं है। ठीक है, फ्यू बुक कीपिंग क्वेश्चन था, जैसे कैन यू प्रोवाइड रेवेन्यू बाइफरकेशन, इसमें से कितना पैनल सेल था, इन्वर्टर था एंड बैटरी इट इज रेडीली अवेलेबल, एंड इन टर्म्स ऑफ मेगावाट एग्जीक्यूशन आप बता सकते हैं Q1 Q2 पुट टुगेदर, आई मीन सेपरेटली Q1 एंड Q2 एंड इवन फॉर द फर्स्ट हाफ मेगावाट टर्म्स पे कितना एग्जीक्यूट हुआ ये सर? So Anuj, I will answer this question. So if we talk about the revenue or for our first half, you want in revenue or in megawatt? No, both sir. In terms of one is revenue bifurcation, in terms of quantum amount, and then in overall megawatt execution. Okay. So when we talk in terms of revenue for first half, so out of 11,652 million, 5,290 million belongs to panel, which comes to 45, nearly 45%. Battery comes to 2,300. Battery comes to 2,374 million, which comes to 20.37 million. And
or electronic comes nearly around, it will be 3,300 million, which comes to your 28%. And rest is other service components and other sales, which is 681 million, which comes to close to 6%. Okay. In terms of megawatt, we sold panels of 302 megawatt and battery 481 megawatt and electronics close to 640 megawatt. Okay. Okay. अगर सिर्फ देखिए मेगावाट की टर्म्स में देखेंगे तो पैनल हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से और बैटरी से कम है। अगर रिवेन्यू के टर्म्स में देखेंगे तो पैनल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पर मेगावाट जो पैनल की कॉस्ट है वो थोड़ी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बैटरी की कम है। Got it. And sir, lastly on the DCR availability, अभी थोड़ा better हुआ है because we are what we are hearing from other people. So because of some kind of a slowdown, DCR availability has improved. So just आपका एक thought लेना। हाँ बिल्कुल सर, तो जो अगर लास्ट मंथ तक बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे लोग, तो अभी मिल पा रहा है। थोड़ा आया बेटर हुआ है, मतलब अभी मिल पा रहा है। एटलीस्ट कॉस्ट तो अभी उतनी नीचे नहीं आई है, बट मिल पा रहा है एटलीस्ट, वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि पहले तो मिल ही नहीं पा रहा था। ये हो रहा था। राइट। तो अभी जैसे अवेलेबिलिटी ईज हो गया है, सो जो ये पीएम हर घर बिजली योजना के स्कीम थ्रू है, वी आर एबल टू एग्जीक्यूट मोर प्रोजेक्ट। इज इट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग? इस महीने में कुछ बेच पा रहे हैं सर, ये हो रहा है। मतलब इससे पिछले महीने से और इससे पहले से देखें तो बिल्कुल भी नहीं बेच पा रहे थे, इस महीने में कुछ बेच पा रहे हैं सर। Fair point, sir. That's it. My answer. Thank you. We take the next question from the line of Sumant Kumar from Motilal Oswal Financial Services Limited. Please go ahead. Yeah, hi Pawan ji. Hello, can you talk on geographical expansion and also channel expansion in the last 2-3 months and going forward? सर हमारे नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स इम्प्रूव हुए हैं, हमारे नंबर ऑफ डीलर्स भी इम्प्रूव हुए और शॉपिंग भी इम्प्रूव। हमने केरला और तमिलनाडु को पहले से काफ़ी अच्छा किया है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। जो हमारे डिफाइंड पाथ थे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सर 70 डिस्ट्रीब्यूटर हमने लास्ट क्वार्टर में ऐड किए, 350 डीलर्स ऐड किए और 20 शॉपीज ऐड किए हैं हमने लास्ट क्वार्टर में एग्जिस्टिंग नेटवर्क। तो अभी टोटल कितना हो गया? 7,500 चैनल पार्टनर। 7,500 प्लस हो गया सर चैनल पार्टनर्स टोटल। ओके। एंड सर्विस इंजीनियर? सर्विस इंजीनियर 600 प्लस है सर, मतलब के अभी ये 600 प्लस है सर्विस इंजीनियर हमारे नेटवर्क। So how is the mix, north east mix, और हमको और कहाँ फोकस कर रहे हैं हम लोग ज्यादा? रीजन वी आर नाउ फोकसिंग वेयर वी वांट टू रीच आवर हाउस। तो ईस्ट ही फोकस कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स हैं। फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड, ये स्टेट जिनको हम लोग फोकस कर रहे हैं। मतलब ये स्पेशल फोकस एरिया है सर, जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं बेसिकली। तो महाराष्ट्र इज ऑलरेडी गुड सर। जो अच्छा है सर उसको तो और अच्छा करना है। ये जो 6 स्टेट बताए हैं, इसको ये काफी वीक है अभी हमारे, इसको मतलब के एक लेवल पे लेके आना है। जो स्पेशल फोकस एरिया बताया है उसको एक अच्छे लेवल पे लेके आना है, मतलब के उसको हम कहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो और एक सर्विस इंजीनियर हो, ऐसे लेवल पे इनको लेके आना है। महाराष्ट्र में ऑलरेडी काफी डिस्ट्रीब्यूटर्स और इंजीनियर्स का हमारा नेटवर्क है अभी भी। ओके। सो स्टेट maybe in the established market, maybe you are number 1, number 2. So can you talk on all the market you are trying? Who is the market leader and local player is market leader, or maybe tier 2, tier 3 companies are doing well,
or established player is market leader? What is our target to become coming number 1 to 3? सर हमारी मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम जो नॉर्मल इन्वर्टर की जो मार्केट है ना, जो बिना सोलर का इन्वर्टर लगाते हैं, उनको हम सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो हम मार्केट को डेवलप कर रहे हैं, हम किसी का शेयर नहीं ले रहे। Okay, so who is market leader in that area where your presence is negligible? देखिए सर, बिना सोलर वाला जो है उसमें अगर हम देखेंगे तो काफी लोग हैं, जिसमें आप ओकाया, माइक्रोटेक, लुमिनस और ऑक्साइड, जीनस, काफी लोग हैं जो बिना सोलर वाला इन्वर्टर कर रहे हैं। तो हम उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट मतलब के बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं सोलर में, जो बिना सोलर वाला इन्वर्टर और बैटरी लगा रहे हैं। तो वो जहाँ पे भी नए एरिया में जब जाते हैं तो हमारा मेन होता है कि आप नॉर्मल इन्वर्टर की बजाय सोलर इन्वर्टर में आए। तो हम आपको उतने ही बजट में आपको सोलर सॉल्यूशंस देंगे, आपका बजट भी उतना रहेगा, आपका बैकअप भी उतना रहेगा, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और बैटरी का रिप्लेसमेंट का खर्च भी कम होगा। तो हम इस एजुकेशन के साथ नए एरिया में जाते हैं, पहले डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को एजुकेट करते हैं, फिर कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, I will now hand the conference over to the management for their closing comments. पहले तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया और क्वेश्चन पूछे। काफी इंसाइटफुल क्वेश्चन थे सबके, काफी इससे लर्निंग भी मिलती है और एक इंसाइट मिलती है, तो उससे कई बार है ना नए रास्ते खुलते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फॉर योर कंटिन्यू इंटरेस्ट इन फ्यूजियामा। वी अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस you place in our company. If you have any additional questions, please feel free to reach out of our investor relationship advisor, Churchgate Partners, and we will be glad if assist you. Thank you very much for your time and support. Thank you very much. Thank you. On behalf of Investec Capital Services India Private Limited, that concludes this conference call. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.